ہم سب اپنی آنکھیں کھولیں گے اور یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہمارا یسوع بادشاہ ہمارے درمیان ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے پاک اور مبارک نام میں آپ تمام مقدسین کی سلامتی ہو، آمین۔ آئیے آج ہم بائبل مقدس کے نئے عہد نامہ میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا رومیو کے نام، پالوس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب۔ آج ہم دیکھیں گے اس میں سے روم کی کلیسیا کے نام ہولی پال نے یہ لیٹر لکھا۔ رومیو کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کو سنیں گے۔ سب میرے ساتھ نکالیے گا۔ اعمال کی کتاب سے آگے ہے رومیو کے نام، پالوس رسول کا خط۔ اگر کسی نے نکال لیا ہے تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں اونچی آواز میں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ آمین 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 آمین۔ تھینک یو بھائی ارسلان، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ عزیزو، ابھی جو ہم نے بائبل مقدس میں سے تلاوت کو سنا، آج کی تلاوت کا، آج کے پیسج کا ہمارا ٹائٹل ہے روحانی نعمت۔ آج اس تعلق سے ہم سیکھیں گے روحانی نعمت۔ پال کہتا ہے کہ میں کسی طرح کامیابی ہو، آنے میں کسی طرح کامیابی ہو، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں۔ 11ویں آیت مقدسہ کے اندر سے میں نے یہ پڑھا ہے، اور 10ویں آیت مقدسہ کے آغاز میں لکھا ہے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو۔ پال عزیزو خدا سے یہ درخواست کرتا ہے، اور درخواست کیوں کرتا ہے؟ درخواست کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہ خدا کی دی ہوئی روحانی جو نعمتیں ہیں وہ دوسروں کے اندر ٹرانسفر ہوں۔ پال اسپیشلی پالوس رسول خدا کے حضور یہ شفاعت کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ خداوند تو مجھے روم کی کلیسیا میں بھی لے کر جا، تاکہ ان تک تیری دی ہوئی نعمتوں کو میں ان تک پہنچا سکوں۔ اس کے اندر یہ بوجھ تھا کہ جو برکتیں خدا نے مجھے دی ہیں وہ برکتیں دوسروں تک بھی شفٹ ہو، دوسروں تک پہنچے۔ کئی دفعہ ہم صرف اپنے لیے خدا سے مانگتے ہیں، اور جب ہمیں برکت مل جاتی ہے تو ہم وہ برکت کو اپنے پاس ہی محدود رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس برکت کو شفٹ نہیں، شیئر نہیں کرتے، اور ہم یہ اپنے اندر سوچ نہیں رکھتے کہ دوسروں کے اندر بھی یہ برکتیں ٹرانسفر ہو جائیں۔ پالوس رسول تو مسا سے بھرے تھے۔ پالوس رسول کو اگر ہم دیکھیں تو پال پاک روح سے لبریز تھے جب یہ خط لکھتے ہیں روم کی کلیسیا کو۔ پاک روح سے بھرے ہوئے اور پاک روح کی حضوری میں ٹھہرتے تھے، پاک روح کی رہنمائی سے چلتے تھے، پاک روح کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے۔ اگر جسمانی طور پر ہم دیکھیں تو پالوس رسول کو تو خدا مل گیا تھا، اسے تو ضرورت نہیں اتنی اذیتوں میں جانے میں اور اتنے دکھوں میں جانے میں، کیونکہ روم کے اندر پالوس رسول کے لیے بے شمار دکھ انتظار کر رہے تھے، اور پالوس رسول ان دکھوں کو جانتا تھا کہ روم کے اندر مجھے بہت دکھ دیے جائیں گے، لیکن وہ دکھوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے اندر یہ بوجھ رکھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ عزیزو، آج پاکیزگی کے اندر زندگی گزارنا سب سے بڑا جو اس کا پرپس ہے ایک ایماندار کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کے وسیلے روحیں بچے۔
पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारने का मकसद ये नहीं कि वो शख्स बचकर हमेशा अकेला रहे। खुदा ने अगर एक शख्स को चुनता है खुदा, या उसे खुदा गुनाहों से निकालता है, तो उसका ये खुदा का एक प्लान है कि इस बेटी के वसीले, इस बेटे के वसीले, इस बेटी के वसीले, इस नौजवान के वसीले आगे फल पैदा हो। आज के मैसेज का हमारा टाइटल क्या है? रूहानी नेमत। आज हम रूहानी नेमत के ताल्लुक से सीखेंगे। रूहानी बरकतें, रूहानी ब्लेसिंग्स जो खुदा हमारे अंदर रखता है, उसका अजीजो खास ये मकसद है कि वो अमानत है दूसरों तक पहुंचाने की। अगर खुदा ने, लाइक मैं अपनी बात करता हूं कि खुदा ने अगर मेरे अंदर कलाम की बरकत को, कलाम सुनाने का, कलाम को समझने का या कलाम की तशरीह करने का तोड़ा रखा है, तो अगर इस तोड़े को मैं अपने अंदर ही रखूंगा तो मैं समझता हूँ कि ये तोड़ा एक वक्त आएगा, इसे जंग लग जाएगा, ये स्टक हो जाएगा, और एक वक्त आएगा ये तोड़ा मेरे अंदर ही अंदर दब जाएगा, बाउंड हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस तोड़े को दूसरों के साथ, आपके साथ या दूसरी कलीसियाओं में शेयर करता हूँ, मुकद्दसीन में शेयर करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये तोड़ा जो है ये मल्टीप्लाई भी होता है, और दूसरे भी लोग जो है वो इस तोड़े के वसीले बरकत पाती है, और उनके अंदर भी ये शौक ज़ौक पैदा होता है कि वो भी कलाम सुनाए। मेरे चंद ऐसे दोस्त हैं, वो मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि पास्टर जी, आपको देखकर हमने तौबा की, हमने आपको देखा कि आपने जवानी में खुदावंद यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तो वो कहते हैं कि आप हमारे लिए रोल मॉडल है। हमने आपको देखा, कलाम को सुना, कलाम को अपनी ज़िंदगी में लिया, और फिर हमने तौबा की, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, और अब वो बाहर के मुल्कों में, बाहर की कंट्रीज के अंदर मुनादी कर रहे हैं। हमारे लाहौर के वो लोग हैं, मेरे क्लास फेलोज थे, तो अभी वो बताते, एक भाई दुबई के अंदर है, तो वो मुझे बता रहा था कि पास्टर जी, मैं वहाँ पर तो जॉब के लिए गया था, लेकिन अभी खुदा वहाँ पर मुझे खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने जो गिफ्ट्स हमारे अंदर रखे हैं वो दूसरों तक शिफ्ट हो रहे हैं। एक वक्त था कि वही लोग, जब हम टीन एज में थे, तो उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ में चले गए, तो वो हंसते थे कि ये इसकी तबीयत, आफ्ताब की तबीयत आम लड़कों से बड़ी हटकर है। लेकिन एक वक्त आया कि उन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने इस बात को सीख लिया कि यही सच्चाई का रास्ता है। हम जितना मर्जी फन कर ले दुनिया के अंदर, जितना मर्जी हम अपनी ज़िंदगी को आवारगी में गुजार दें, ज़ाया कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक ना एक दिन हमें यीशु के कदमों में आना है। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो जवानी में यीशु के कदमों में आता है। मुबारक वो शख्स है जो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर यीशु के कदमों में जो शख्स आता है, खुदा उसे पसंद करता है। और आज अभी हम सीख रहे हैं कि जो बरकतें खुदा ने हमें दी हुई हैं, वो हमने अपने अंदर नहीं रखनी, बल्कि दुआ करनी उनके लिए। खुदावंद, मेरे अंदर ये जो तूने ब्लेसिंग रखी है, मैं चाहता हूँ ये बरकत दूसरों के अंदर शिफ्ट हो जाए। ये बरकत सिर्फ मेरे हाथ तक ना रहे, मैं चाहता हूँ इस बरकत से दूसरे भी फायदा ले। अगर एक शख्स को खुदा ने अच्छी आवाज़ दी है, गाने का एक अच्छा तोड़ा दिया है, तो वो कह सकता है कि खुदावंद, तू ऐसा मुमकिन कर कि मैं दूसरों के साथ इस बरकत को, इस नेमत को, इस तोड़े को शेयर करूं, ताकि ये बढ़े, दूसरे भी प्रस्तिश करें। कई दफ़ा आपको पता है, लोग मज़बा के ऊपर खड़े होते तो वो कहते हैं कि सिर्फ माइक अभी हमें मिल गया है, तभी ये माइक ही हमारा है। तो किसी को प्रस्तिश करने नहीं देते। कोई गीत गाता है या गाती है तो उसे पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने सबको साथ लेकर चलना है। बेसिकली अजीजों, हम सब जितने ईमानदार मुकद्दसीन जिन्हें खुदा ने चुना हुआ है, हम सब यीशु के खेत में काम करते हैं। और अगर फसल बहुत ज़्यादा है तो मजदूर कम है, तो उन्हें कहा जाए कि ये फसल जो है ये आपने काटनी है,
تو وہ دیکھیں گے کہ یہ فصل جہاں تک نظر جاتی ہے تو ہمیں فصل ہی فصل نظر آتی ہے، لیکن ہم تھوڑے سے لوگ ہیں تو بہت ٹائم لگے گا، اس پر تو مہینے بھی لگ سکتے ہیں، میں بھی سال لگ جائیں۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے نہیں جی آپ ہی نے اسے کاٹنا ہے، تو وہ بیچارے کاٹنا تو شروع کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک سے پیار کرتے ہیں، اس کی تابع داری کرتے ہوئے فصل کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ وقت گزرتا ہے، خدا ان کے ساتھ اور لوگ لے کر آتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے ہمت کی اس فصل کو کاٹنے کے لیے، آپ تیار ہو گئے، آپ اس فصل کو کاٹ بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ فصل بہت زیادہ ہے، اب میں نے کچھ اور ورکر آپ کو دے دیے۔ وہ پھر ان کے ساتھ جب مل جاتے ہیں، جو کام مہینوں میں ہو رہا ہوتا ہے وہ دنوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، خدا پھر کچھ اور بندے جو ہے، ورکرز جو ہے، مزدور جو ہے، پادری جو ہے، خدا اور ان میں شامل کر دیتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اور میں تمہیں یہ پاسٹرز دیتا ہوں، فصل بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ سب مل کر یہ کام کرو۔ ہم نے کوئی تمغہ تو لینا نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جی یہ منسٹری میری ہے، یہ چرچ میرا ہے، اس میں ہم نے تمغہ تو کوئی نہیں لینا۔ یہ ایک جسمانی ڈگریاں نہیں ہے، یہ جسمانی جیسے کسی شخص کو سہرایا جاتا ہے کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کیا، جنگ تھی وہاں پر آپ نے بہت اچھا کارنامہ کیا تو آپ کو یہ تمغہ ملتا ہے۔ اس روحانی وارفیئر کے اندر ایسا نہیں ہے۔ روحانی جو جنگ میں آپ اور میں ہم سب شامل ہیں، اس میں ابدی زندگی کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں مسیحا پسند کر لے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں تمغہ نہیں چاہیے۔ آپ کو اور مجھے جیزس پسند کر لے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے برکت کی بات کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں انسان گناہ میں پیدا ہوتا ہے، گناہ میں بڑا ہوتا ہے، گناہ کی سوچوں میں وہ رہتا ہے، تو بھی جیزس آپ سے پیار کرتے ہیں اور اپنی پاک باہوں کے اندر آپ کو لے لیتے ہیں۔ کتنی بڑی یسوع کی محبت ہے، اپنی پاکیزہ بازوؤں کے اندر یسوع آپ کو لے لیتے ہیں۔ میں ایک پک کو دیکھ رہا تھا کہ ایک چرواہا اس نے بڑا خوبصورت میمنہ اٹھایا ہوتا، تو میں اپنے لیے سوچ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں خدا نے ہر مقدس بیٹے کو ایک میمنے کی طرح، ایک چھوٹے سے لیلے کی طرح ہمیں اپنے بازوں میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ مسیحا کی محبت ہے، لیکن تو بھی انسان ہوتے ہوئے انسان کمزور ہے۔ خدا اپنے بیٹے یسوع کے ہاتھوں میں ہمیں سونپ دیتا ہے، ہمیں یسوع بادشاہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم یسوع کے ہاتھوں سے نکلتے ہیں، پھر بھاگ کر گناہ کرتے ہیں۔ وہ ایک مثال ہے پنجابی کی کہ میں تینوں کچھڑ چک بہنا ہے لیکن تو ڈگ پہنا ہے، کہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں لیکن آپ زبردستی نیچے گرتے ہیں، آپ کو چوٹ لگے گی، ایسے ہی۔ لیکن جو شخص، جو بیٹی، جو بیٹا مسیحا کے ہاتھوں میں ٹھہرا رہتا ہے، وہ شخص بابرکت ہو جاتا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو پرپس عزیزو ہے، وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف جاب کرنی ہے، اس کے بعد ہم بڑے ہو جائیں گے، پھر دنیا کی اور جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں گے، اس کے بعد بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم نے ساری زندگی گورنمنٹ جاب کر لی، اب ہماری پینشن لگی ہوئی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے، ایمانداروں کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ایمانداروں کو خدا نے ایک خاص پرپس کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے لوگ صبح اچھے بھلے اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو اور مجھے اگر خدا نے سنبھالا، ہماری سانسوں کو خدا نے محفوظ رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر روز ہماری زندگی میں خدا ایک مقصد کو پیدا کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے وہ مقصد پورا ہو۔ آپ کے وسیلے اگر ایک شخص بھی توبہ کرتا ہے تو آپ مبارک ہیں۔ آپ کے کسی کو ملنے سے، کسی سے بات کرنے سے، مسیح کے دیے ہوئے توڑے کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے اگر کوئی زندگی گناہوں سے باہر نکل آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ سے زیادہ امیر ترین شخص کوئی نہیں ہے۔ لوگ تو پیسہ کماتی ہے، آپ نے روحیں کمائی ہے، آپ نے روحوں کو جیتا ہے۔ لوگ انعام جیتتے ہیں، وہ انعام ایک وقت آتا ہے مرجھا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہم کھا بھی لیتے ہیں، کئی دفعہ پیسوں کا انعام ملے اسے یوز کر لیتے ہیں،
लेकिन जब आपको रूहानी इनाम मिलेगा, आपके वसीले लाखों रूहें सेफ होंगी, तो खुदा कहेगा कि ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ, ये मेरा प्यारा बेटा है। आज हम सीख रहे हैं जिस तरह पौलुस रसूल तड़पता था, उसे अपनी रोटी की भूख नहीं है, उसको अपनी भूख की तरफ उसका ध्यान नहीं है, उसके अंदर अगर प्यास है, भूख है, उस चीज को वो इग्नोर करते हुए वो अपनी रूह की भूख को देखता है कि मेरे अंदर, ये मेरी रूह के अंदर भूख है कि खुदा की दी हुई नेमतें जो मेरे अंदर है वो दूसरों तक शिफ्ट हो जाए, ताकि मेरी जिंदगी तो पता नहीं कितनी है, कल भी खुदा मुझे अपने पास बुला सकता है, लेकिन मेरी बरकतें जो दूसरों के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी, खुदा इसका भी मुझे अजर देगा। जो लोग लालची होती हैं, सीट का लालच करती हैं, ऐसे लोग जो है वो ब्लेस्ड नहीं होते। कई लोग आपको पता है सीट का बड़ा लालच करते हैं कि साड़ी सीट ही कोई ना खोले। डेविल ने आसमानों पर ये लालच किया था तो खुदा ने उसे जमीन पर फेंक दिया। आज हर वो शख्स जो अपनी सीट का लालच करता है कि मेरा रुतबा कोई और ना ले ले, तो वो शख्स लाइफ में रूहानी तौर पर बढ़ता नहीं है। कभी ऐसे लालच ना करें। आपके अंदर जो बरकत खुदा ने रखी हुई है वो सबसे उम्दा है, वो सबसे उम्मीद है। अगर पास्टर डॉक्टर बेनी हिन मेरे सामने आ जाए तो क्या मैं कहूंगा कि मेरी बरकत कम है? मैं तो फिर यीशु को छोटा कर दूंगा। जीसस तो बहुत बड़े हैं। पास्टर बेनी हिन खुदा के अजीम सूर में, वो हमारे रूहानी बुजुर्ग हैं, हम उनको ऑनर देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ब्लेसिंग यीशु ने मुझे दी है वो सबसे मुनफरद है। जो बरकत खुदा ने पास्टर साहब डॉक्टर बेनी हिन को दी है वो उनके लिए सबसे मुनफरद है। मेरी जो बरकतें हैं वो सबसे मुनफरद है। मैंने उन पर काम करना है कि वो दूसरों में शिफ्ट हो जाए। एक दिन शायद मैं किसी को बता रहा था कि खुदा ने अपनी खादमा से और अपने खादम से ये कलाम किया था कि जो लोग अब्दी निजात चर्च का प्रॉपरली हिस्सा बन जाएंगे, तो जो पाकीज़गी खुदा ने कहा मैंने अपने खादमों के अंदर रखी है, वही पाकीज़गी कलीसिया के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। आज यूहन्नाबाद की बात नहीं मैं कर रहा, लाहौर की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे दास हैं जिन्हें यीशु के लहू से धुलने की जरूरत है। बेशुमार ऐसे खुदा, कलीसिया की बात हम नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक आपको लीड करने वाले शख्स, अगर बाप जुआ खेलता है तो कैसे वो डिमांड कर सकता है कि उसका बच्चा अच्छा निकले? खुदा करे तो खुदा उसे अच्छा बना सकते हैं, लेकिन बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसे बिगाड़ने, क्योंकि वो तो खुद गलत स्टेप में, गलत काम में मशगूल है। इसी तरह आपको लीड करने वाला शख्स, आपको डील करने वाला शख्स, आप तक मसीह के पैगाम को पहुंचाने वाला शख्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद मसीह के कदमों में झुकने वाला हो, ताकि आप तक मसीह का पैगाम अच्छी तरह पहुंचा सके। अगर वायर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कभी भी आपकी डिवाइस नहीं चलेंगी, इसलिए वायर का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। पीछे ट्रांसफ़र का आपका जो मीटर है, इन चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको भी दूसरों के लिए इस्तेमाल करे, तो आज से ज़रूर ये दुआ करें कि खुदावंद मेरे अंदर जो तूने गिफ्ट रखा है उसकी मुझे समझ दे, मुझे अकल दे, मुझे बता मेरे अंदर कौन सा तोड़ा तूने रखा है। अगर मैंने आज सीखा कि रूहानी नेमत पॉल चाहता है कि वो रोम की कलीसिया तक पहुंच जाए, जो नेमतें खुदा ने पौलुस रसूल के अंदर रखी थी, तो खुदावंद मेरे अंदर कौन सी बरकतें, ताकि मैं चाहता हूँ वो बरकतें भी दूसरों तक पहुंच जाए। आपके लिए दोबारा से तिलावत ये करूँगा। रोमियो के नाम पॉल का पौलुस रसूल का खत है, उसका पहला बाब, उसकी सिर्फ 11वीं आयत मुकद्दसा को आपके लिए पढ़ूंगा। लिखे क्योंकि तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ। पहली 10वीं आयत में पॉल कहते हैं कि खुदा से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इतना वो बेकरार है। 11वीं आयत में लिखे है कि मैं मुश्ताक हूँ तुम्हारी मुलाकात का, तुम्हें देखने का, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं। इसका मतलब है पौलुस रसूल के अंदर कितनी बरकतें थी, जो कह रहा है कि कोई ना कोई आपको दे दो, कोई ना कोई आपको मिल जाए। एक दिन मैं पढ़ रहा था
तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि पालूस रसूल को खुदा ने इतनी बरकत दी कि लोग उसे छू कर शिफा पाते थे। उसके जिस्म के पर रुमाल पटके लगाते, बीमारों पर डालते, बीमार चंगे होते। इसका मतलब वो नेमतों से भरा हुआ शख्स था। तो वो कभी नहीं कहता था कि मैं सिकंदर आजम की तरह दुनिया में सबसे ज्यादा मस्सा से भरा हुआ शख्स बन जाऊं और मेरी एक मूर्ति बन जाए, लोग दूर दूर मुल्कों से आकर मेरी पूजा करें। तो वो कहें कि पॉल की तरह तो कोई शख्स इस तरह का बंदा नहीं है जिसके अंदर इतनी नेमती हो। वो पौलुस रसूल की कभी भी ऐसी सोच नहीं है। खुदा खुश होता है उन बेटियों से, उन बेटों से जो अपने गिफ्ट्स के ऊपर फख्र नहीं करते, बल्कि उनका फख्र यीशु होता है कि मुझे ये देखिए आंख ठीक काम कर रही है तो इसमें आपका कमाल नहीं है, यीशु का कमाल है। कई दफा ऐसी आंख सूझ जाती है तो बंदा ऐसी दारू शुरू ढूंढना शुरू कर देता है, आंख मेरी ठीक हो रही। तो आपकी तो आंखों को डेली यीशु ठीक करते हैं, आपके कान ठीक सुनते हैं। इसका मतलब है जीसस ने आपकी अज़ाओं की हिफाजत का जिम्मेदारी खुद ली हुई है और डेली जीसस आपके अज़ाओं की हिफाजत करती है। आज से अजीजों, आज जो मैसेज अभी हमने सुना इसका खुलासा ये था कि हमने अपनी नेमतों को जानना है। कामयाब तरीन वो शख्स है जो सिर्फ अपनी नेमत के ऊपर वर्क करता है। अगर आपको पता ही नहीं आपको खुदा ने कौन सा गिफ्ट दिया है तो आप कोई और काम कर रहे हैं। लास्ट में एक मिसाल दूंगा, छोटी सी एग्जांपल है, उसके बाद मैं कलाम को क्लोज करूंगा। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो बताते हैं कि आज से 15 साल पहले की बात है, वो अमेरिका गए और अमेरिका से फिर वो इसराइल में गए और मुल्क इसराइल में उन्होंने दिमाग के वो डॉक्टर बने। वो बता रहे थे कि मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिश थी क्योंकि मेरा बाप उसे दिमाग की डिजीज़ हुई तो उसका इलाज नहीं हुआ तो मेरे डैडी की डेथ हो गई। तो कहते हैं कि बचपन से मेरे अंदर ये तड़प थी कि मैंने दिमाग का, ब्रेन का डॉक्टर बनना है और सर्जन डॉक्टर बनना है, स्पेशलिस्ट मैं ब्रेन में बनूंगा डॉक्टर। तो वो बताता है कि मैं पाकिस्तान से, वो सिर्फ उसने मैट्रिक तक, आगे फिर खुदा ने ऐसा मुमकिन किया वो अमेरिका चले गए, वहाँ पर उन्होंने आगे कॉलेज में तालीम हासिल की। तो वो बताती है कि मैं जब मेडिकल में था तो एक स्पेशल कोर्स करने के लिए मुझे इसराइल जाने का मौका मिला। तो जब वहाँ पर मुझे डिग्री मिल गई, जिस दिन डिग्री, वो बताता है डिग्री मेरे हाथ में है और मुझे ब्रेन के सर्जन, सीनियर डॉक्टर की मुझे डिग्री मिल गई। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइफ उसके हाथ में है। तो कहते मैं बहुत खुश है। जब हमारी जो प्रोग्राम था वहाँ से डिग्री को रिसीव करके गाड़ी में जब मैं अपने घर आया तो मैं दुआ में ठहरा, तो उस दिन खुदा ने मुझसे कलाम किया कि जॉयल, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था इसराइल में तुझे लेकर आने का कि तू ब्रेन का डॉक्टर बने। मेरा ये मकसद है कि तू रूहों की निजात के लिए काम करे। तो वो बताता है कि पास्टर जी अभी वो बेनी हिंद की टीम में वो शख्स काम कर रहा है। तो वो बताता है कि इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की, लेकिन आज कभी कभी वो कहता है कि मैं पछताता हूँ कि मैंने कभी दुआ में नहीं कहा था कि खुदावंद तेरा क्या मकसद है, मैं क्या बनूं, मुझे किस लिए तूने जिंदा रखा हुआ है। जिस तरह मेरी बहन मोस्टली कहती भाई दुआ के लिए मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो हम दुआ में रखेंगे खुदावंद तेरा क्या मकसद है, क्या तू चाहता है तेरी बेटी जॉब करे, क्या तू चाहता है कि खुदावंद मैं ये काम करूँ, ये बिजनेस करूँ, इस फैक्ट्री के अंदर जाऊँ, इस मैं ऑफिस के अंदर जाकर वर्क करूं, तेरी क्या मर्जी है। और जब आप तजुर्बा से खुदा की मर्जी को मालूम कर लेंगे तो उस वक्त अजीजों खुदा आपकी लाइफ के अंदर अपना मकसद पूरा करना शुरू कर देंगे। आपको पता है हन्ना ने बहुत दुआ की कि खुदावन मेरी सोतन मुझे तंग करती है, मुझे औलाद दे, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। वो बहुत ज्यादा मनते खुदा के हुजूर लेकर आती थी। लेकिन एक दिन उसने कहा कि खुदावन तू मुझे बेटा दे, तू मुझे औलाद दे, वो मैं तेरी नजर कर दूंगी, वो तेरे लिए बेटी हो, बेटा हो, वो तेरे लिए इस्तेमाल होगा, मैं तुझे दे दूंगी। खुदा को उस दौर में नबी चाहिए था। खुदा चाहता था
कोई इंसान, कोई बेटी अपने मुंह से कहे कि मैं अपनी औलाद तुझे दे दूंगी। उस दौर में लोग बुतों के आगे अपने बच्चों को कुर्बान कर देते थे, लेकिन खुदा के लिए कोई शख्स तैयार नहीं था। हन्ना ने ऐसा किया। खुदा को नबी चाहिए था, हन्ना को बेटा चाहिए था। जब हन्ना ने दुआ की खुदा की सोच के मुताबिक, तो हन्ना और खुदा एक ही पिच पर आ गए, तो खुदा ने मौजज़ा कर दिया। खुदा ने हन्ना को बेटा दिया, हन्ना को बेटा मिल गया, खुदा को नबी मिल गया। आज कुछ हम ऐसी दुआएं करते हैं जिनमें खुदा की मर्जी नहीं होती। हमारे दरमियान अरसलान भाई